Hello dear children, welcome to our maths class. Dear children, again I am here with 7th part of algebraic expression and identities, बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण, chapter number 9 from your textbook. Dear children, in our last class we have discussed all about identities. We have seen what are standard identities. Dear children, our today's topic is applying identity, सर्व समीकरणों का उपयोग. Before going to start our today's class, let's do a quick recap. Okay? Dear children, in our last class we have discussed an identity is an equality which is true for all the values of the variable in it. On the other hand, an equation is not true for all the values of the variable in it. It is true for only the certain value of the variable in it, right? Because of that reason, we can say an equation is not an identity. अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे सर्व समीका वह समीका है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, जबकि समीकरण चर के सभी मानों के लिए सत्य नहीं होती है, वह चर के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होती है. इसी वजह से समीकरण को सर्व समीका नहीं कहा जा सकता है ना बच्चों. डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ को भी हमने देखा, राइट. फॉर एग्जाम्पल a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Then a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. A plus b into a minus b is equals to a square minus b square. X plus a, x plus b is equals to x square plus x into a plus b plus ab. Dear student, all these identities are obtained by multiplying a binomial by a binomial, and expression on right hand side is obtained from left hand side by actual multiplication, right. I am sure you all have understood all those things very well. Dear student, I am sure you all are ready to learn how to find product by applying a suitable identities, right. So let's start our today's class with some example. प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. क्वेश्चन है यूज अ सुइटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. Okay, here today we will work on two identity. First two identity, the first one is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, and the second one is a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, so let's see how can we apply identity to find the product of this given expression. Okay, see, ध्यान दीजिए बच्चों, x plus 3 into x plus 3, x plus 3 into x plus 3, it means we can write it as x plus 3 whole square, right? Clear? x plus 3 whole square, it means it is like if अगर हम ले लेते हैं, if I'll take x is equals to a and 3 is equals to b, right? तो अगर x की जगह पे a और 3 की जगह पे b लिख लेंगे तो ये हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. लाइक ये एक आइडेंटिटी है जो हमने पढ़ा है ना. सो x की जगह पे a और b की जगह पे 3, अगर हम इसे लिख लेते हैं a की जगह पे x और b की जगह पे हम 3 लिख देते हैं तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इस
स्क्वायर जो है इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को लेकर। ओके, नाउ सी कैसे हम x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इन दोनों का प्रोडक्ट इस आइडेंटिटी से फाइंड करते हैं। देखिए x प्लस 3 स्क्वायर, राइट, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 3 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, what is a? A is x into what is b? b is 3 plus 3 का square. Okay, now this is x square plus 2 3s are 6x plus 3 square means it is like 3 square means 3 into 3. So 3 into 3 is 9. Clear? Therefore x plus 3 into x plus 3 is equals to x square plus 6x plus 9. देखिए कितना जल्दी हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है ना। अगर मैं इसे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके अगर मैं करती हूँ तो देखिए कैसे होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स, ओके, फर्स्ट स्टेप, then second step x into 3, third step 3 into x, then 3 into 3, right, then x into x is x square plus 3x plus 3x plus 3 3s are 9, right, then x square plus 6x plus 9. देखिए ये आंसर हमें मिली है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये आइडेंटिटी को अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर को अप्लाई करके किया, हमारा स्टेप्स जो है बहुत ही कम स्टेप्स में ये हो गया 1 and 2 मीन्स 2 स्टेप्स में ही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, राइट। जबकि यहाँ पे हमें ईच टर्म से उसे मल्टीप्लाई करना और बहुत ही केयरफुल रह के भी करना है ना बच्चों। सो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल। नाउ द सेकेंड वन इज 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। इसे भी हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5 स्क्वायर, राइट। सेम यहाँ पे भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ 2y प्लस 5 स्क्वायर, a की जगह पे 2y है, सो विल राइट 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे 2y इंटू b की जगह पे 5 प्लस 5 स्क्वायर। क्लियर? b स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। नाउ 2y स्क्वायर मीन्स 2y इंटू 2y। क्लियर? सो 2 इंटू 2 4, y into y square, right, then 2 2s are 4, 4 5s are 20y plus 5 square means 5 into 5, so this is 25. Clear? And this is your required answer. First one and second one is over. Okay, now we'll see third and fourth one. See, third one is x by 2 plus 3y by 4, x by 2 plus 3y by 4. इसे भी हम लिख सकते हैं x by 2 plus 3y by 4 whole square, right? यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। Clear? Now what is a here? A is x by 2. What is b? B is 3 by 4y whole square. Okay. Now a square means x by 2 whole square plus 2 into a. A is x by 2 into b. What is b? 3 by 4y. So this is 3 by 4y plus b square, that is 3 by 4y whole square. Clear? Now the next step is x by 2 whole square means x by 2 का square. So this is x by 2 into x by 2, right? X into x is x square.
and 2 into 2 is 4. So this will become x square by 4 plus, अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, दिस इज लाइक 2 into x by 2 plus 3 into 3 by 4 y. यही है 2 into x by 2 into 3 by 4 y, राइट. अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके. जो बच गया है उसे लिखिए 3 by 4 x y. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 by 4 x y. क्लियर. नाउ प्लस 3 by 4 y square. So 3 by 4 y square is 3 by 4 y into 3 by 4 y. राइट. अब कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए. 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. अब वेरिएबल को वेरिएबल से करिए तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों के पावर ऐड हो गए तो क्या हो गया 9 by 16 y स्क्वायर. क्लियर. सो यहाँ पे ये हो जाएगी 9 by 16 y स्क्वायर. क्लियर. एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ये जो है x by 2 प्लस 3 by 4 y इंटू x by 2 प्लस 3 by 4 y का सोल्यूशन है x स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 by 4 xy प्लस 9 by 16 y square. Clear? Now see the next question. Next question is 2xy plus 5z square. देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह आपको गिवन थे x+3 इंटू x+3. इसे हमने x+3 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखकर सॉल्व किया था, राइट. अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में गिवन है, a प्लस बी होल स्क्वायर 2xy प्लस 5z स्क्वायर. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम थिंग, फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Identity number 1, we'll use this identity, right. Now 2xy, a is 2xy plus b is 5z square. Okay. Now this is 2xy whole square plus 2 into what is a? A is 2xy. See, a is 2xy. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2xy into b. What is b? b की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है? 5z. So 5z plus b square 5z square. Clear? Now see next step. 2xy, it means 2xy square. It means 2xy into 2xy. Okay, so multiply coefficient with coefficient. 2 into 2, 4, x into x, x square, y into y, y square, right. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x square, y square plus same way 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, x, y, z plus 5z square. 5z square means 5z into 5z, 5 5 za 25z square. So this is 25z square. Clear? 2xy plus 5z square is equals to 4x square y square plus 20xyz plus 25z square is the required answer. Clear? अभी तक हमने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना सीखा, राइट. नाउ सी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है लाइक 103 का हमें स्क्वायर करना है तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके कैसे उसका स्क्वायर करेंगे.
Okay, now see 103 square means 103 into 103, right? इसका यही मतलब है ना। लेकिन हम इसे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो बहुत ही टीडियस वर्क है, इट्स अ वेरी टीडियस वर्क, राइट। सो हम क्या करेंगे इसे, देखिए हम लिखेंगे 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब ये किसके फॉर्म में लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा है, राइट। So a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Okay, now what is a here, 100. What is b? b is 3 whole square. Clear? Now 100 square, a square means 100 square plus 2 into 100 into b. What is b? b is 3 plus b square 3 square. Okay, now 100 square, clear, 10,000 plus 2 3s are 6, 6 into 100 600, 3 square 9. So our answer is 90601. आप इसे करके देखिए। ओके, देन 600, देन 9, add them. This is 90601. Clear? So what is our answer? Our answer is 10,609. Okay, now we'll go to next question. Our next question is 5.2 whole square. Seventh one is 5.2 square. Okay, 5.2 square को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 5.0 प्लस 0.2 स्क्वायर। देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 5.0 0.2, सो 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 0 5.2 आ गया, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज 5.0 प्लस 0.2. क्लियर? नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a इज 5.0 and b is 0.2. Clear? Now a square means 5.0 square. 5.0 is nothing, it's just 5. okay, है ना। ये 0 हम हटा सकते हैं, 0 को लेके आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसलिए मैंने उसे डेसिमल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो see next step, plus 2 into a, what is a? 5.0 into b, what is b? 0.2 plus b square 0.2 square. Clear? See next step, 5.0 square, it means 5.0 means मैंने क्या बताया, 5 है ना। So 5.0 square means 25, right? So हम यहाँ पे लिखेंगे 25. Clear? Plus 5.0 into 2, it means 5 into 2, 10. This is 10 into 0.2. ओके, सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो पॉइंट क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, इट विल बिकम 2.0, है ना। सो और आप अगर आपको डाउट हो तो यू कैन मल्टीप्लाई एंड चेक. 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 0 zeros are 0, 0 ones are 0, then 0 2 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा. सो दिस इज 2.0. ओके, 2.0 मीन्स 2. सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2. कंप्लीट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 0.2 स्क्वायर. 0.2 स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2 दो बार मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा
4 0 0 0. So this is 4 0 0. So it will come like this. Okay. So this is 0.04. अगर आप डेसिमल में स्ट्रॉन्ग हो तो आप नॉर्मली डायरेक्टली भी आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो. ठीक है. नाउ ऐड देम. अब आप इसे ऐड करोगे. सो 25 यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सो हम यहाँ पे 2 0 लिख लेते हैं. ओके. देन 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 0 लिख लेते हैं. देन 0.04. क्लियर. नाउ ऐड देम. अब उसे ऐड कीजिए. 0 + 0 यहाँ पे 4 0 7 2. So our answer is 27.04. Clear? Dear student, I am sure आपको फर्स्ट आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर को कैसे यूज़ करके हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं समझ में आ गया होगा. नाउ विल सी सेकेंड आइडेंटिटी. नाउ विल सी हाउ कैन वी अप्लाई सेकेंड आइडेंटिटी. सेकेंड आइडेंटिटी में क्या कहा गया है? a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर. सबसे पहले आपका काम होता है कि क्वेश्चन को देखने के बाद, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे देखने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी. ओके. स्विटेबल आइडेंटिटी क्या है? इस प्रोडक्ट को करने के लिए कौन सी स्विटेबल आइडेंटिटी है? यू हैव टू फाइंड इट. ओके. सी यहाँ पे 2a - 7 2a - 7, सो वी कैन राइट इट एज 2a - 7 स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना. 2a - 7 स्क्वायर a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में है. राइट. सो हम यहाँ पे a की जगह पे लिख लेते हैं 2a - 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर. ओके. -2 इंटू a की जगह पे 2a इंटू b, b की जगह पे 7 प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर. सो दिस इज 2a स्क्वायर 2 2 जा 4 a स्क्वायर -2 2 जा 4 4 7 जा 28 a प्लस 7 7 जा 49. ठीक है. यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं. 2a स्क्वायर मीन्स 2a स्क्वायर का मतलब है 2a इंटू 2a. दिस इज 2a द होल स्क्वायर है. इट मीन्स 2a और 2a 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो 2 इंटू 2 4 a इंटू a स्क्वायर. राइट. ठीक उसी तरह 7 स्क्वायर जब यहाँ पे लिखा होता है इट मीन्स 7 इंटू 7. कई बार बच्चे क्या करते हैं 7 2 जा 14 लिख देते हैं. ओके. तो 7 इंटू 7 दैट इज 7 7 जा 49. So this is our required answer. Clear? Now see the next question. Second one is 3a - 1/2 into 3a - 1/2. इसे भी हम लिख सकते हैं 3a - 1/2 होल स्क्वायर. राइट. ये किस फॉर्म में है? a - b होल स्क्वायर. राइट. a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर. Clear? Now what is a? A is 3a minus b is 1/2 whole square is equals to a square means 3a whole square minus 2 into a. A is 3a into b. B is 1/2 plus b square 1/2 whole square. Okay. Now 3a whole square means 3a into 3a. 3 3s are 9. A into a square. So our answer is 9a square. Right? Clear? Now 2 से 2 cancel हो गया. यहाँ पे क्या बचा? 3a. 3a into 1. 3a plus 1/2 square. 1/2 square means what? 1/2
into 1 by 2, right? 1 into 1, 1, 2 into 2, 4. So this is your required answer. Clear? Now see the next question. 7a minus 9b into 7a minus 9b, इसे भी हम लिख सकते हैं 7a minus 9b whole square, right? ओके, ये किस फॉर्म में है? a minus b होल स्क्वायर के फॉर्म में है. ओके, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, नाउ what is a? a is 7a, b is 9b whole square. Now a square means 7a whole square minus 2 into 7a into 9b plus 9b whole square. Okay, now 7a square, 7a whole square means 7a into 7a. So 7 sevens are 49, a into a square, 7 twos are 14, okay, 14 nines are 126 ab plus 9 nines are means 9b whole square means 9b into 9b, 9 nines are 81, b into b, b square. So what is our answer? Our answer is this one. Clear? Okay. Now we'll go for next question. The next one is b minus 7 whole square. b minus 7 whole square इससे पहले इस फॉर्म में थी, अब इस फॉर्म में गिवन है. ये डायरेक्टली देखने से ही हमें पता चल जाता है कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. क्लियर? नाउ व्हाट इज a? a is b here and what is b? b is 7. Okay, a square that is b square. Okay, minus 2 into a की जगह पे b into b की जगह पे 7 plus 7 square 7 whole square. Clear? Now this is b square, 7 twos are 14b plus 7 sevens are 49. Clear? Now we'll see the next question. ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप फर्स्ट आइडेंटिटी को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और सेकेंड आइडेंटिटी को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे. अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी को लेते हैं तो a की जगह पे माइनस ए हो जाएगा और b की जगह पे c. अगर हम इसे सेकेंड आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे रीराइट करते हैं c और फिर हम लिखते हैं c माइनस ए और फिर इसे लिखते हैं c माइनस ए. अगर इस फॉर्म में लिखें तो दिस विल बिकम c माइनस ए होल स्क्वायर. राइट, ये हमें इजी पड़ेगी. अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज a? c. a की जगह पे क्या है? c. एंड व्हाट इज b? b की जगह पे है a. ओके, सो a स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर. 2 इंटू c, a की जगह पे b की जगह पे a है प्लस b स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर हो जाएगा. राइट, सो दिस विल बिकम c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 998 स्क्वायर. 998 स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे 1000 minus 2. Okay, 1000 minus 2 square. So this will become a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. What is a? A is 1000, b is 2. Then this is 1000 square minus 2 into 1000 into 2 plus 2 square. राइट, चेक करके देख सकते हैं आप. 1000 है, 1000 में 2 माइनस किया, दिस इज 10, 9, 9, 10 माइनस 2, 8, 9, 9. राइट, देखिए दिस इज 1000 स्क्वायर. ओके,
minus 2 into 2 4 plus 4. Now again 4 ऐड कर देंगे दोनों को, राइट, minus 4000. Clear? Now subtract it. इसे subtract कीजिए. So this will become 4, then 0, 0, 6, 9, 9. आप इसे करके देख लीजिए. Subtract it. 0, 0, this is 10, this is 9, this is 9, 10 minus 4, 6, 9, 9. Is it clear? Okay. So dear student, I am sure you all have understood how to apply identities for the multiplication of two binomial or two numbers, right. So dear student, I am sure you all have understood whatever we have learned here, right. So dear student, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे. Till then, bye bye.